Hi everyone. Today let's make something really beautiful looking. These are rose shaped buns. We'll make them using zucchini, salami. These are chicken salami pieces that we will use, and we'll also use apples. Now we'll make three different set of roses using these three different things. They are so yummy and so beautiful to look at that they are actually to die for. Now we'll just see the procedure. It's very simple. Just see how beautiful they look. So beautiful and equally tasty. Let me tell you that, very delicious, very soft and buttery. So first we will need about 2.5 cups of all-purpose flour, in which I have added 3 tablespoons of sugar, half teaspoon salt, 1 tablespoon of instant dry yeast, and we'll mix it dry and then add 1 beaten egg. And I'm using a stand mixer to mix all of it together. And once this is mixed, I'll be adding a 3/4 cup of milk, and lastly I'll add about 3 tablespoons of soft butter. Now this butter is saltless. This is without salt. That is why I added salt in the beginning. And then we'll give it a mix in the stand mixer. You can do it using a wooden spoon in a bowl if you wish to do it manually. I'm doing it in a stand mixer, and once this is all done and the dough looks good, we remove it and we just coat our hands with a little bit of butter and coat the dough all over with this, and then put it back in the bowl which is greased a little, and we cover it and then cover it and keep it in a warm place for about 1 hour. So I've covered it and I put a cloth on it, and I'm keeping it aside in a warm place, and we'll see it after 1 hour. So 1 hour gone, and here I'm opening the bowl. See how soft it is, and it has risen well. It's really soft. We'll remove it from the bowl and put it on a working sheet here, and just sprinkle a wee bit of flour. थोड़ा सा मैदा बस डालेंगे यहाँ पे, हल्का सा छिड़कना, हमें बहुत ज़्यादा सूखा मैदा नहीं लगाना है। और इस डो को निकाल के और इसको फोल्ड करते हुए इनवर्ड्स इसको थोड़ा सा इसको नीड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथों से बस वी हैव टू जस्ट इनकॉर्पोरेट इट ऑल टुगेदर टू गेट अ सॉफ्ट बॉल। एक सॉफ्ट सा बॉल बन जाए, ये डो बिल्कुल बहुत बढ़िया स्मूथ हो जाए, उसके बाद हम इसके पीसेस करके और हम बंस बनाएंगे अलग अलग टाइप के। सो पहले मैं इसको काट लेती हूँ इनटू हाफ। सो वी हैव 2 पीसेस। पहले हम आधे पीस को यूज़ करेंगे और फिर आधे पीस को हम रख देते बोल में कवर करके, और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। सो इसको हम रख देते हैं और कवर करके बोल में, जस्ट कवर इट सो दैट डजंट ड्राई ऑफ। और ये जो हमारे पास जो हमने जितना डो का पीस लिया है, इसको भी हम थोड़ा सा ठीक से बॉल बना लेते हैं, एंड देन विल कट इट इनटू 4 पीसेस। इसमें मैं सबसे पहले बनाएंगे हम जुकीनी से बंस। इनको बिल्कुल थिन स्लाइसेस में आपने काट लेना है, स्किन नहीं उतारना है। अलॉन्ग विद द स्किन जस्ट कट इनटू वेरी फाइन स्लाइसेस, बिल्कुल पतले स्लाइस कर लिए मैंने। कुछ ये टूट गई है जुकीनी, इनको भी हम यूज़ करेंगे, हाफ्स में है, इनके भी हम बंस बनाएंगे। वी विल नॉट वेस्ट एनीथिंग। और ये मेरे पास गार्लिक एंड हर्ब बटर है, सो मैं इसको पहले डो पे लगा लेती हूँ, और इसको अब हम जुकीनी के बंस पहले तैयार कर लेते हैं। So out of this we will make 4 of them, 4 zucchini buns. तो इसके पहले हम 4 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लेते हैं। डो बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है, will not take time at all. Just stretching it and pulling it downwards and made a smooth ball out of it. Now cutting this into 4 pieces. ये 2 पीसेस हो गए और ये अनदर। सो आई हैव 4 पीसेस। और आप देख लीजिए, अगर बड़े छोटे लगे यू कैन ऑलवेज पुल आउट सम डो फ्रॉम वन बॉल एंड पुट इट विद द अदर, सो दैट यू हैव 4 इक्वल साइज्ड बॉल्स फॉर दीज बंस। और इनके हमने रोज शेप बनाने हैं जुकीनी के। सबसे पहले हम ये बनाएंगे, उसके बाद हम एप्पल के बनाएंगे बंस इसी तरीके से, और फिर हम सलामी के बंस बनाएंगे। तो ये बॉल्स रेडी हैं। अब जब हम इनको रोलिंग पिन से रोल करेंगे तो हमको उनको थोड़ा स्ट्रेच करते हुए, थोड़ा दबाते हुए
इन्हें स्ट्रेच करके रिबन की तरह बनाना है। सो ये बॉल्स आर ऑल रेडी और इनको अभी हम विद द हेल्प ऑफ अ रोलिंग पिन रोल करेंगे। मैं आपको थोड़ा ब्रॉड वाले भी बना के बताऊंगी एंड थोड़े थिन वाले, सो दैट यू हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ बन्स। व्हेन यू टेक अ ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ डो आपको थोड़ा सा बड़ा बन मिलता है, और जब आप थोड़ी पतली स्ट्रिप बनाते हैं तो थोड़ा सा हाइट में कम होता है वो बन। सो हम दोनों, मैं फुल पीसेस भी लेके दिखाऊंगी और ये जो हाफ पीसेस हैं हमारे जुकीनी के, इनके भी बना के दिखाऊंगी। सो लेट्स टेक अ रोलिंग पिन एंड थोड़ा सा डस्ट करके फ्लावर को स्ट्रेच करते हुए ये स्ट्रिप बना लेंगे। थोड़ी सी मोटी स्ट्रिप बनाएंगे और इसको स्ट्रेच करिए। इसको अगर आप स्ट्रेच नहीं करेंगे वापस इट विल कम बैक टू इट्स पोजीशन। जस्ट थोड़ा सा प्रेशर, लाइट प्रेशर देते हुए इसको स्ट्रेच करिए। सो ये मोटा सा एक रिबन सा हमारे पास तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। यही जो हमने गार्लिक बटर लिया है, ये बटर हम लेके और इस पर लगाएंगे। ये गार्लिक बटर ऑलरेडी ये आता है, मैंने अमूल का यूज़ करा है। इसके अंदर ऑलरेडी हर्ब्स मिक्स्ड है, इसलिए मैंने नहीं और कुछ डाला है। अगर आप नॉर्मल सॉल्टेड बटर लें तो आप उसमें थोड़ा सा ग्रेट करके गार्लिक और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स डाल लीजिए एंड देन यूज़ इट। तो इसको पहले हम इस पर अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं रिबन पे विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, और फिर हम इस पर ये पीसेस लगाएंगे जुकीनी के। इसको ध्यान से देखिएगा। सो बिल्कुल साइड्स को थोड़ा सा ओवरलैप करना है, गैप नहीं होना चाहिए इन पीसेस में। और कोई पीस अगर कहीं से कटा हुआ है या कुछ तो उसको अंदर की तरफ कर दीजिए, जो बाहर का है, क्योंकि वही नज़र आएगा पेटल्स में। तो बाहर की तरफ सी दैट यू हैव नो कट्स इन दी पीसेस। ये थोड़े से ओवरलैप करते हुए मैंने इन पीसेस को लगाया है और ये मैंने ब्रॉड स्ट्रिप के मैं बन्स आपको बना के दिखा रही हूँ। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये जो हमारा डो है इसको हम फोल्ड करेंगे। और देखिए मैंने दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है स्ट्रिप की, क्योंकि अभी जब हम इसको रोल करेंगे तो हमको थोड़ा सा उसको लास्ट में डो को चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो ये रोल खुल सकता है। सो एक तरफ से शुरू करते हुए पहले आप इसको प्रेस कर लीजिए, थोड़ा सा बटर और लगाएंगे हम स्ट्रिप के ऊपर एंड देन वी विल स्टार्ट रोलिंग इट। ये थोड़ा सा बटर लगा लीजिए, दिस बटरी गार्लिकी टेस्ट रियली नाइस। सो ये भी थोड़ा सा लगा लिया हमने और वंस दिस इज डन इसको रोल करेंगे। वेरी सिंपल टू रोल। अगर आप पीसेस मोटे काटेंगे तो आप रोल नहीं कर पाएंगे। आपके ये जो जुकीनी के पीसेस हैं ये बिल्कुल पतले, बहुत पतले स्लाइसेस होने चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, मोटे होंगे तो वो टूट जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू रोल। सो ये रोल कर लिया। और अगर आपको लगे कि ये देखिए जो साइड का एंड है जो डो का, उसको ये थोड़ा सा कैमरा हैज़ शिफ्टेड, तो ये थोड़ा सा इसको आप हाथों से पिंच करते हुए डो को चिपका लीजिए। और अगर आपको लगे कि कोई पेटल बाहर की तरफ निकल रहा है ज़्यादा, उसको हल्के हाथों से दबा दीजिए। एंड दिस आई हैव अ मफिन टिन, इसके अंदर हम इनको बेक करेंगे। सो जैसे जैसे ये बनते जाएंगे हम इनको, टिन को पहले ग्रीस कर लिया है मैंने, और इसके अंदर अब हम इनको रखते जाएंगे। पहले हम जुकीनी के बना रहे हैं, पहले उनको रख लेते हैं और फिर हम इसी में एप्पल के भी। सो 6 हम बनाते हैं, पहले 4 जुकीनी के और 2 एप्पल के, तो इसमें 6 आ जाएंगे मफिन्स टिन के अंदर। सो ये एक सेट ऑफ बन गया ये जुकीनी का। ये होल पीसेस लिए थे हमने, ऐसा ही एक दूसरा बना लेते हैं। ये देखिए दूसरा भी बन गया। और अब ये जो टूटे हुए पीसेस थे जो मैंने स्लाइस करते हुए जो मुझसे टूट गए थे, वो हाफ हैं हमारे पास, उनको भी हम यूज़ करके आई शो यू हाउ टू मेक इट। इसके लिए थोड़ी सी पतली स्ट्रिप आप बेलिए, सो दैट क्योंकि आधे पीसेस हैं हमारे, तो हम पतली स्ट्रिप रखेंगे, उतनी चौड़ी नहीं मैं रख रही हूँ। ये जो डो की मैंने स्ट्रिप बनाई है रिबन, इस पर भी उसी तरीके से हमने गार्लिक लगा लिया इस, और हम जुकीनी के हाफ वाले पीसेस रखेंगे इसके ऊपर, और फिर हम उसी तरह फोल्ड करके और फिर इसको रोल करेंगे। सेम प्रोसीजर, सिर्फ स्ट्रिप की विड्थ थोड़ी सी इसमें हमने कम रखी है, बिकॉज दीज पीसेस आर इन हाफ, सो यू डोंट नीड अ वेरी ब्रॉड स्ट्रिप। So rolling it with, please do it very softly and slowly so that you get the petals in order. और अगर आपको लगे कोई पेटल बाहर निकल रही है, बाहर निकल के आ रही है, एक तो पहले पिंच कर लीजिए। ये जो डो का एंड है इसको अच्छे से इसमें दबा दीजिए। और कोई इसमें देखिए जुकीनी थोड़ी सी बाहर निकल रही है, मैं हाथों से उसको प्रेस करके अंदर कर दूंगी। So don't worry if it is popping out, you just press it with very light hand, just press it slightly into the dough and it will stick there. So ये भी तैयार, this also goes in. तो हमारे 4 जुकीनी के बंस, रोज़ बंस तैयार हो गए हैं। एंड आई विल जस्ट कवर इट एंड कीप इट असाइड। और फिर जो हमारा डो है उसमें से मैं 2 एप्पल रोज़ बंस के लिए और डो निकाल लूँगी।
इनको पहले हम कवर करके किनारे रख देते हैं सो दैट दे डोंट ड्राई ऑफ। एंड नाउ आई टेक आउट स्मॉल बॉल। पहले हम एप्पल काट लेते हैं। एप्पल का बीच में से टेक आउट द कोर, रिमूव इट, और इसकी साइड्स भी दोनों क्लीन कर लीजिए। हमने स्किन नहीं निकालना है एप्पल का, स्किन के साथ ही काटने हैं क्योंकि वो स्किन की जो लाइन ऊपर से दिखती है रोजेज़ में, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सो वी हैव टू कीप द स्किन इंटैक्ट। और ये देखिए मैं कैसे काट रही हूँ, वो मैंने जब क्लीन कर लिया कोर को, पहले फर्स्ट स्लाइस आप हटा दीजिए और उसके बाद आप इनको थिन स्लाइसेस में आप इनको स्लाइस करिए। मोटे स्लाइस होंगे सेम प्रॉब्लम, इट विल ब्रेक। आपके रोज़ की बंस जो हैं जब आप फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे, वो ब्रेक कर जाएंगे। सो कीप द स्लाइसेस वेरी थिन एंड पुट देम असाइड। एंड सेम प्रोसीजर, उसी तरह हम फिर से डो लेंगे और रोल करेंगे। तो पहले हमारे रोज़ ये तैयार हैं। अगर आपको लगे कि अभी भी बहुत हार्ड है, थोड़े से गर्म पानी में इनको एक बार डिप करके और निकाल सकते हैं, उससे थोड़े से ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। आई हैव नॉट डन इट बट यू कैन डू इट इफ़ यू फाइंड दैट इट इज़ वेरी हार्ड टू रोल। सो सेम वे अगेन प्लकिंग। और इसके लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी कैस्टर शुगर, जिसमें मैं सिनेमन पाउडर थोड़ा सा मिला दिया है मैंने। 2 टीस्पून ऑफ कैस्टर शुगर में करीब ½ टीस्पून सिनेमन पाउडर मैंने डाल के मिला लिया है और इसको मिक्स करके अलग से रख लेंगे। और इसमें हम ये स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि ये एप्पल बन्स थोड़े से स्वीट अच्छे लगते हैं और जो सिनेमन का फ्लेवर जो आता है उसमें द टेस्ट, इट जस्ट टेस्ट सो यमी। सो जस्ट मिक्स इट वेल so that there are no lumps. You can even pass it through a sieve. आप इसे छान के भी यूज़ कर सकते हैं, but I am just pressing it with a spoon to remove any lumps. And the apples are ready, the sprinkle is ready, and now we roll out the strip, the ribbons out of the dough. So we'll make 2 apple rose buns. So पहले मैं एक सेम प्रोसीजर से आपको दिखा रही हूँ। इसको हम रोल करते हैं, पहले थोड़ा सा डस्ट करेंगे फ्लावर को, सेम वे थोड़ा सा ये मोटी स्ट्रिप आप बना सकते हैं या पतली, इट इज़ अप टू यू, आप क्या हाइट चाहते हैं अपने रोज़ बंस की। ये देखिए मैं फोल्ड करके और फिर इसको प्रेस कर रही हूँ। जस्ट प्रेस इट जेंटली, बहुत ज़ोर से नहीं, इट विल ब्रेक। सो वेरी जेंटली जस्ट रोल इट, ट्राई एंड गेट अ नाइस लेंथ। आप जितनी लेंथ रखेंगे, जितने पीसेस लगाएंगे, उतने ही पेटल्स बनेंगे रोजेज़ के। वो आप देख लिया, आप 5 लगाना चाहते हैं, आप 7 लगाना चाहते हैं, आप 9 लगाना चाहते हैं, वॉट एवर। सो आई हैव मेड अ लॉन्ग स्ट्रिप ribbon out of the dough and now I'll be sprinkling some castor sugar। और ये थोड़ी सी इसमें मैं plain butter लगाऊंगी। देखिए इसमें आप garlic butter ना लगा दीजिएगा, put plain butter। garlic butter हमने लगाया था zucchini वाले buns में। so इसमें हम plain butter का थोड़ा सा एक ब्रश लगा के और इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे ये cinnamon और sugar का मिक्स। इस पर हल्के हाथों से स्प्रिंकल करिए, वो स्वीटनेस आएगी इस बन में। हमने बाकी बंस में नहीं लगाना है शुगर और सिनेमन, सिर्फ एप्पल वाले में। अब इस पे हम वही पीसेस प्लेस कर रहे हैं। देखिए इसमें मैंने ज़्यादा पीसेस लगाए हैं, जुकीनी में मैंने कम लगाए थे। एंड इसको बिल्कुल हल्के हाथों से वही सेम प्रोसीजर फोल्ड करिए। पहले इसको अच्छे से फोल्ड करके दबा दीजिए, डोंट कीप इट टू लूज। और इसके एंड्स को भी सिक्योर कर दीजिए, दोनों को ताकि वो चिपक जाएँ। जो फोल्डेड एंड है दोनों साइड्स पे चिपक जाए। वंस दिस इज़ डन, start rolling from one end with light hands and move till the other end and you will have all the petals intact। और हल्के हाथों से दबाते जाइए। अगर आपको लगे कोई एप्पल का पीस बाहर आ रहा है, उसको दबा के अंदर कर दीजिए, थोड़ा सा हाथों से खोल के उसकी शेप ठीक कर लीजिए। एंड सेम वे एंड्स को सिक्योर करना है। ये दूसरी स्ट्रिप मैं ले रही हूँ। ये देखिए मैं ब्रॉड स्ट्रिप ली है इस बार मैंने। मैं आपको ब्रॉड स्ट्रिप से भी फिर बना के दिखा रही हूँ। एक हमने थिन स्ट्रिप ली थी डो की और इसको हमने थोड़ा सा ब्रॉड बेला है। So with a rolling pin just make it a slightly broad ribbon। So here it is and same procedure, butter, then sugar and cinnamon। Now pieces of apples will go onto it, these thin slices of apple, they'll go onto it and they'll all, please keep the ends overlapped। जो ends हैं उसको हम थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, गैप नहीं होना चाहिए इन पीसेस में। हल्का सा एंड टू एंड ओवरलैप करिए और फिर वही स्ट्रिप को आप फोल्ड करिए एंड फिर स्प्रिंकल करिए शुगर सिनेमन उसके ऊपर और फिर से एंड्स को सिक्योर करते हुए आप रोल करिए फ्रॉम वन एंड टू द अदर। और जब वो रोल हो जाए उसके एंड को पिंच करके डो को एकदम चिपका दीजिए। अदरवाइज जब आप बेक करेंगे इसको, अगर वो चिपका नहीं होगा वो खुल जाएगा, तो ये आपका रोज़ बिल्कुल खुला हुआ दिखेगा। सो इट विल नॉट लुक नाइस। वो जब एंड जब उसका चिपका हुआ होगा तो वो बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है इसकी।
इसको ऐसे रोल करो और एंड को ये जो डो का एंड है इसको चिपका दिया, पिंच करते हुए डो को चिपका दिया। सो दिस इज़ ऑल्सो डन। सो हमारे 2 देखिए रोजेज़ अब एप्पल्स के भी तैयार हो गए। 4 जुकीनी, 2 एप्पल्स और हमारे मफ़िन टिन में ये 6 हम डाल के अभी पहले हमने इनको थोड़ी देर छोड़ देना, हाफ एन आवर के लिए ढक के, ताकि हमारा जो ये नीचे डो है थोड़ा सा और राइज कर जाए। इसको हाफ एन आवर के लिए हम कवर करके विल कीप इट असाइड। और जब तक ये हम इन्हें साइड में रख रहे हैं तब तक हम अपने सलामी वाले बंस तैयार कर लेंगे। सो हाथ से प्रेस कर लीजिए अगर आपको लगे इसकी थोड़ी सी पेटल बाहर आ रही है कि ये ठीक से नहीं आ रही है, बट इसको मैं थोड़ा सा दबा के देखती हूँ अगर हो जाए। और इसको अब हम कवर करके और साइड में रख देंगे फॉर हाफ एन आवर, अबाउट 30 मिनट्स। वो राइज कर जाएगा तब तक। तो ये हो गया। नाउ टाइम टू मेक द चिकन सलामी बंस। अगर आपके पास पेपरोनी हो या छोटे साइज़ की सलामी हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास थी नहीं, ये थोड़े बिग साइज़ सलामी है, सो मैं इसी से आपको दिखा रही हूँ बिकॉज आई हैड अ फ्रेंड हु रियली वांटेड टू सी हाउ इट्स डन। इसमें मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस थोड़ी सी लगा के स्ट्रिप के ऊपर सेम वे रिबन पहले बेला, उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी लगा दी, उसके ऊपर मैं सलामी को ओवरलैप करते हुए लगा रही हूँ। यू सी हाउ मेनी पेटल्स, आप देख लीजिए जितना हम डालना। पेपरोनी होगी तो छोटे छोटे बहुत सारे इसके बन जाएंगे, लेकिन ये क्योंकि सलामी है तो ये बड़ी साइज़ की, इसमें इतने ज़्यादा पेटल नहीं आएंगे। तो ये मैंने लगा दिया। एंड थोड़ा सा जब आप सलामी के ऊपर भी हल्का सी कोटिंग आप कर दीजिए ऑफ दिस पिज़्ज़ा सॉस, तो दैट रेडिश टिंज विल कम, दैट ऑल्सो लुक्स नाइस। सेम में इसको रोल करिए, फोल्ड करके एंड्स को सिक्योर करिए एंड योर सलामी रोज बंस आर रेडी। सी हाउ सिंपल इट इज़ एंड सो ब्यूटिफुल। खाने वाले को तो टेस्ट तो आएगा ही, देखने में दे लुक सो ब्यूटिफुल, सो अपीलिंग टू द आईज, सो टेम्पटिंग। सो हियर इट इज़, द सलामी रोज इज़ रेडी। और इसी तरीके से हम दूसरा रोज़ भी तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक टिन लिया है और पाई टिन, और इसमें मैं ये दोनों को रख रही हूँ। हल्का सा ग्रीस कर लिया मैंने। इन दोनों को मैं अलग से बेक करूँगी। इसमें भी हम जब ब्रश लगाते हैं तो आप गार्लिक बटर का लगाइए, सलामी के साथ इट गोज़ वेरी वेल। और जो एप्पल वाला है उस पर हमने प्लेन बटर लगाया है। सो अभी हमारे ये देखिए डो ख़त्म। सो इतने डो में हमने 6 + 2 8 बंस हमने तैयार कर लिए। 6 ये हैं और 2 सलामी के। सो अब ये आधा घंटा हो गया है रेस्ट करते हुए। ये डो हैज़ रिजन, यू कैन सी। अब इस पर हम थोड़ा सा एग वॉश लगाएंगे। जो डो का एरिया है, जहाँ जहाँ डो है उस पर हम थोड़ा सा एग वॉश लगा देंगे। आप चाहें तो सिर्फ एग योक ले सकते हैं, उसमें 1 टीस्पून मिल्क डाल के उसको वॉश कर दीजिए, या आप होल एग ले लीजिए। और इसको, और ये मैं थोड़ा सा बहुत यूज़ होता है, ये 1 एग है, इतना यूज़ नहीं होता है। The rest of the egg you keep it in your fridge, cover it, and you can make an omelette or whatever. You may use this for or maybe you want to make some other dough, you can use the egg there, क्योंकि जब हम डो बनाते हैं हम उसमें भी एग डालते हैं। और ना चाहें तो आप सिर्फ मिल्क वॉश दे दीजिए, that's not an issue। ऐसे एग से ही होता है, द कलर थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन कलर आता है जो बहुत अपीलिंग लगता है इसको। सो इसको बेक करेंगे हम 200 डिग्रीज पे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। और अगर आपको तब भी लगे कि अभी कलर नहीं आया तो आप 2-3 मिनट और कर लीजिए इसको बेक। सो ये जो एप्पल वाला है इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा शुगर एंड सिनेमन पाउडर। फिर से मैं दोबारा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ बेक करने से पहले। सो पुटिंग इट टू बेक नाउ एंड 200 डिग्रीज पे भी आप इसको रख सकते हैं, अराउंड 15 मिनट्स में हो जाता है। और अगर आप 180 डिग्री पे रख रहे हैं सो देन डू इट अप टू maybe 20 minutes or so you have to see your oven and accordingly set your timing. So I'm putting it in here। और ये जब तक वो बेक हो रहे हैं हम ये सलामी बंस को देख लेते हैं। ये भी राइस कर गए, इनको भी हाफ एन आवर हो गया है और अभी 5 मिनट्स रह गए हैं मेरे बेकिंग के। तब तक जुकीनी वाले बंस जब तक तैयार होके बाहर आएंगे हम इनको अंदर डाल देंगे। इनको भी हम एग वॉश दे देते हैं, थोड़ी सी शेप ठीक कर लेते हैं, देख लेते हैं एंड्स कहीं से खुल तो नहीं रहे, और चेक करने के बाद इसको एग वॉश देंगे एंड देन इसको हम बेकिंग के लिए डाल देंगे। उनको निकाल लेंगे और ये इसको अंदर डाल देंगे। सो दिस इज़ डन। इसको भी एग वॉश दे देते हैं। आप चारों तरफ से लगाइए एग वॉश। wherever you find the dough you just put an egg wash on it, so it looks nice, it gives a nice color like I said. So giving it an egg wash now and see how pretty they look. Salami ke bhi rose buns, I mean this is really beautiful. And you can experiment, you can try other things, you can try making rose buns with others.
The procedure will remain the same, just overlapping these and rolling it out. So easy, so simple. And they are so soft. When you have these buns, you will see they are so soft and buttery. Just melt in the mouth. They really taste yummy. So ये भी egg wash हो गया हमारा. And time to take out our zucchini and apple buns. Here they are. See how golden and beautiful they look. थोड़ा सा वो शेप इनकी ऐसी हो जाती है क्योंकि जब आप इनको बेकिंग के लिए डालते हैं वो कई बार वो थोड़ा सा पोजीशन थोड़ा हिल गया या कुछ, सो वो कभी स्लांट आ जाता है थोड़ा सा. दैट्स नॉट एन इशू. यू कैन प्लेस देम ब्यूटिफुली इन अ प्लेट एंड दे लुक लवली. ये एप्पल. अब हम इनको एक बार हम बटर से इनको थोड़ा सा कोट करेंगे. जब ये वार्म होंगे तभी हम इनको बटर से कोट कर देंगे. सो इनको निकाल के और पहले हम सलामी बंस को अब डाल देते हैं बेक करने के लिए. सेम एट 200 डिग्रीज I'm putting them for about 15 to 20 minutes. So in it goes. और ये अब हम इनको बटर से कोट कर लेते हैं. ये मैं प्लेन बटर यूज़ कर रही हूँ. इसे कोट कर लेते हैं. थोड़ा सा बटरी और थोड़ा सा शाइन आ जाता है. A little glossy look on the buns which make them look very appealing, very appealing. So just coating them slightly. चारों तरफ से करिए, small sides. So this is done and they look so beautiful, they look so lovely. And so हम पहले एप्पल बंस को हम अलग सर्व कर लेंगे और जुकीनी को हम अलग से सर्व कर लेंगे. सो ये जो छोटा प्लेटर है उसमें मैं एप्पल रोज़ बंस को डाल दूंगी और ये थोड़ा बड़ा प्लेटर है इसमें मैं जुकीनी रोज़ बंस को डाल रही हूँ. And don't they look so pretty? Sitting in the platter, the apple roses and the zucchini roses both looking so pretty. And by now our salami rose buns are also done. उनको भी हम देख लेते हैं. पहले हम इस पर थोड़ा स्प्रिंकल कर लेते हैं, थोड़ा सा शुगर और सिनेमन ऊपर से और for a nice little coat or sprinkle look, just to give it a nice dressed up look only on the apple rose buns. And ये देखिए हमारे सलामी रोज़ बंस भी तब तक रेडी हो गए. And they are also looking nice golden brown and well baked and risen, very soft, very very yummy. इनको भी हम एक कोटिंग दे देते हैं. आप बटर की कोटिंग करिए इनके ऊपर to give it the glossy look like I said. और इसको हम आप वायर रख के थोड़ी देर छोड़ दीजिए. या you want to serve it right hot right out of the oven, you can do that. or you can just cool it down a wee bit. तो वार्म इनको सर्व करिए. They taste good at any time of the day. You can enjoy it with your tea time or as a snack in the evening. Serve it to your family, your friends. Everyone will just love it and keep saying wow. So enjoy, friends. Enjoy the visual treat. Enjoy the lovely buttery taste. And the 3 different kinds of roses are a treat to the eyes. So friends, do give my video a like if you enjoyed it. And do share it with your friends. Bye for now.